Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 6 in your NCERT book. The name of this chapter is Physical and Chemical Changes. Okay, in previous class we started this chapter and we understand two type of changes are here. First one is physical change and second is chemical change. We discuss some of the example of physical change. Okay, and one short revision, some example of a physical change. Then after we discuss about the chemical changes. Okay, first we discuss here. First example is, first we cut a piece of paper in 4 square pieces. एक paper के हम 4 pieces को cut करके then we check this is a physical or chemical. What type of a physical change? Here is a definition. There is a definition. Properties of a physical property may be changes. This type of change is called a physical change. What is a physical properties? Maybe change in a shape, maybe change in a size, maybe change in a color, and maybe change in a state of a substance are called a physical property. Or if any substances undergo any change in a physical properties are called a physical change. Or most important thing is no new substances formed. When we cut into a paper into 4 pieces to 8 pieces, no new substances obtained. Paper is paper. बस size क्या हो गया उस paper का short हो गया, but basic property जो एक paper की होगी, it never be changed. Okay, so that's why 6.1 example is a physical change. Next example is a crush of chalk. When we add a little water, it turned into a again chalk. ठीक है, तो नो फिजिकल नो न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन. जो चॉक पाउडर है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, जो चॉक है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है. नो सिंगल चेंजेस है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है. भाई चॉक का जो पाउडर है वो डस्टरी फॉर्म में है, तो उसका टेक्सचर जो है पाउडरी फॉर्म में है, और चॉक जो है सॉलिड सब्सटेंस हो गया. तो मे बी उसका टेक्सचर चेंज हुआ, ना कि कोई और प्रॉपर्टी चेंज हुई है, कोई न्यू सब्सटेंस हमारे पास में नहीं ऑब्टेन हुआ. दैट्स व्हाई इट इज अ physical change. Move towards activity 6.3. When we take a glass tumbler, और हम एक आइस ले लें इन ग्लास टम्बलर एंड पुट इन front of the sun, it melt and convert into a water. When this water, again this tumbler we put in a freezer, it convert into an again solid ice. तो वापस से वो किस में चेंज हो जाएगी? सॉलिड आइस में चेंज हो जाएगी. सॉलिड आइस एंड वाटर, और बोथ आर द सेम थिंग, बट क्या चीज चेंज है? स्टेट चेंज है. वही लिक्विड और सॉलिड चेंज है, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी जो वाटर की होगी वही प्रॉपर्टीज आइस की होगी. ठीक है, तो हम वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं H2O ही होगा, और आइस का भी जो केमिकल फॉर्मूला मेंशन करते हैं वो भी H2O ही होता है. तो नो न्यू सब्सटेंसेस ऑब्टेन. सबसे बेसिक हमें यही ध्यान रखना है, न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है. Maybe no new substance is obtained, it is a physical change, or maybe new substance is obtained. Example, when I burn the paper, जब मैं पेपर को बर्न करती हूँ, we get a ash and smoke. तो ash and smoke are the new substance. Okay, so where is a chemical change. Okay, but here no new substance is obtained. That's why we said this type of change is a physical change. Okay, now next activity is 6.4. बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर. हम एक कंटेनर के अंदर वाटर को बॉयल करते हैं, एक कोल्ड प्लेट को उसके ऊपर प्लेस करते हैं. देन वी ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स इज देयर. तो वाटर वेपर जो है कोल्ड सरफेस पर टकरा कर क्या करेगी? कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स में. तो वाटर कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर में, देन वाटर वेपर कन्वर्ट हुई वाटर में. तो नो न्यू सब्सटेंसेस ऑब्टेन, बोथ आर द सेम थिंग. So activity 6.4 also a physical change. Okay, next activity हमने रीड की थी कि जब हम एक नाइफ को या हेक्सा ब्लेड को बर्नर के ऊपर रख देंगे तो रेड हॉट कलर में चेंज हो जाएगी. whenever हम रिप्लेस करेंगे, जैसे ही बर्नर ऑफ किया या हमने उसको उस जगह से रिप्लेस कर दिया, तो इट टर्न इनटू अ बैक इन स्टेज, बैक इन कलर. वापस अब उसका जो ओरिजिनल कलर है वो उसमें चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो कोई न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ. हमें नाइफ के साथ में कोई ऐश मिल रहा है या नाइफ के साथ में कुछ स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, नो ना. So that's why it is a physical change. Okay, फिजिकल चेंज और फिजिकल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है प्लीज आप कंसीडर कर लीजिए. ये आपको लर्न करनी है. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है?
shape, size, color, state, texture, okay, maybe temperature, all are the physical property. Okay, and what is physical change? A change in which a substance, undergo a change in its physical property is called a physical change. उसी को हम क्या बोल देते हैं? Physical change बोल देते हैं. Okay, और इन physical change की सबसे important property और क्या है? In such a change, no new substances form. Okay. Now in today class we take a new topic, that is a chemical change. Okay, what is a chemical change? Chemical change के regarding हम एक बात बार बार बोल रहे हैं, new substances form. क्या substance form होगा? New substance जरूर form होगा. Okay, वाटर में हमने आइस की बात की थी, स्टीम की बात की थी, उसमें मैंने आपको बताया कि बेसिक जो इंटरनल फॉर्मूला है ना वो चेंज नहीं होता. भाई आइस का फॉर्मूला H2O, स्टीम का फॉर्मूला H2O, सो नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला H2O. ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर उनकी चेंज नहीं होती है. ठीक है, बट इन केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा? इंटरनल स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे. हाउ इट इज हैपन वी डिस्कस हियर. ओके, फर्स्ट थिंग इज व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, कोई भी सब्सटेंस अगर केमिकल चेंज के अंदर कंटिन्यू करता है तो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होती है और न्यू थिंग इज ए न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा. नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल. जो प्रॉपर्टी है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो ओरिजिनल सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट होगा. जैसे मैंने आपको बर्निंग ऑफ पेपर का एग्जांपल दिया, तो बर्निंग ऑफ पेपर के एग्जाम्पल के लिए क्या बोला कि अगर मैं इसको बर्न करती हूँ तो मेरे को क्या ऐश और स्मोक मिलता है. तो पहले पेपर कैसा था? व्हाइट कलर का था. अब वो कैसे कलर का हो गया? ब्लैक. जो पेपर का कंपोजिशन है, क्या वो ऐश का कंपोजिशन हो सकता है? नो. और स्मोक का कंपोजिशन होगा? नो. तो दोनों का कंपोजिशन भी टोटली डिफरेंट है. तो वी गेट अ न्यू थिंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर आल्सो चेंज. उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या बेसिक स्ट्रक्चर जो उनकी फॉर्म होने की होती है वो टोटली चेंज होती है. सो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल change. A new thing also a chemical changes never be a reversible. Chemical change कभी भी reversible नहीं होंगे. Chemical change always will be a irreversible reaction. मतलब कभी भी आपने पेपर को burn कर दिया, it convert into ash and smoke, तो हम वापस से एश एंड स्मोक को मिक्स करके वापस पेपर नहीं बना सकते. ओके, लेकिन आप फिजिकल चेंज के अंदर देख रहे थे, आइस कन्वर्ट हो रही थी वाटर में, वाटर कन्वर्ट होता है स्टेम में, स्टेम को वाटर हम कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू उसको वाटर में चेंज किया है, देन फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू वाटर वापस हमने उसको सॉलिड आइस में चेंज कर दिया. तो वो फिजिकल चेंज के अंदर कुछ चेंजेस, काफी चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं. ठीक है, बट इन केमिकल चेंज के अंदर कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, नॉट अ सिंगल वन. अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन चेंज है, तो दैट मींस इट इज नॉट अ टाइप ऑफ अ केमिकल change. Okay, now here we discuss, start this topic. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. First chemical change के अंदर example दिया आपका rusting of iron. आप इससे बहुत familiar होंगे. rusting of iron means, rust means जंग लगना. ठीक है, आपके घर पे कोई भी वह आयरन का टैप होगा, पाइप होंगे, छत पर कोई पाइप होगा, वायर होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि रेडिश, जो वायर का कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है. ठीक है, तो रेडिश ब्राउन का मीनिंग क्या हो गया? रस्टिंग, उस पे आयरन पे क्या लग गया है? रस्ट लग गया है. ठीक है, इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर some time it acquire a film of brownish substance. अगर आप उस आयरन के पीस को मॉइस्चर्ड एनवायरनमेंट में रख देंगे तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक थिन लेयर, ब्राउनिश थिन लेयर या रेडिश ब्राउनिश थिन लेयर सा सब्सटेंस सबमिट होना लग जाता है, या एक फिल्म पूरे पे बन जाती है. This substance is called a rust. This substance is called a rust and this process is called a rusting. Okay, तो इसको हम ऐसे इक्वेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे आयरन को है ना, जैसे वाटर को कैसे डिनोट करते हैं हम? H2O से. हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2. ऐसे आयरन को किससे डिनोट किया जाता है बेटा? Fe. इससे Fe. और ऑक्सीजन का तो हमें पता है, अगर हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे O2 की, तो आयरन Fe मीन्स आयरन, O2 मीन्स ऑक्सीजन या मॉइस्चर वाटर ले लीजिए. तो Fe प्लस O2 रिएक्ट करके Fe2O3 Fe2O3 बना देते हैं. तो इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं. अब क्या आपको इन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है क्या? Fe2O3 इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड. ओके, और पहला Fe था फेरस,
एंड सेकेंड ऑक्सीजन। तो पहले जो केमिकल स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था, आफ्टर चेंज यानी रस्टिंग प्रोसेस के बाद में उसका केमिकल स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है, okay. You see in iron gates of park and farmlands, iron benches kept in lawns or garden, almost very article of iron kept in open get rusted. अगर उनको open में रख दिया जाता है तो उनमें धीरे धीरे rust बनना start हो जाता है. At home you must have seen shovels, spade getting rusted. ये किसके नेम है बेटा? जो आप गार्डनिंग करते टाइम जिन चीजों का यूज करते हैं ना, उनके नाम है. ठीक है, गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर फॉर सम टाइम इन द किचन. वेट आयरन पे जो तवा होता है वो भी किसका बना होता है? आयरन का बना होता है. अगर आप उसको गीला रख देंगे तो उसमें भी क्या होगा? रस्ट बनने लग जाएगा. इट लेफ्ट इन दैट स्टेट ऑफ सम टाइम. रस्ट इज नॉट अ आयरन. आयरन जो है वो रस्ट नहीं होता है. रस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, आयरन इज अ डिफरेंट थिंग. मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई थी, एक बार वापस बता देती हूँ, नेटवर्क इशू हो गया था. आयरन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Fe. जब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से कनेक्ट होते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू अ Fe2O3. तो ये जो Fe2O3 है ये रस्ट है, और Fe जो है वो आयरन है. तो एक बात क्लियर हो रही है आपको? तो रस्ट इज अ डिफरेंट थिंग ऑफ आयरन. रस्ट आयरन नहीं होता, रस्ट सेपरेट थिंग है, आयरन सेपरेट थिंग है. आयरन का फॉर्मूला Fe और रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3. ओके, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड. एक मेन चीज ये है कि रस्ट जो है आयरन से बिल्कुल डिफरेंट थिंग होती है. क्या चीज है? इसके ऊपर, आयरन के ऊपर जो ये रस्ट है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है. लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. तो हियर हमको इस रिएक्शन को देख के स्पेशली ये पता पड़ रहा है कि हियर इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड Fe2O3. दैट्स व्हाई वी सेड हियर इज अ केमिकल चेंज. Okay, now we move to activity 6.6, one another example of chemical change. Get a small piece of thin strip of ribbon of magnesium, clean it stiff with sandpaper. हम एक स्मॉल पतली स्ट्रिप्स को, रिबन की पतली सी स्ट्रिप को, मैग्नीशियम को लिया, सैंड पेपर से उसकी अपर सरफेस को क्लीन किया, एंड ब्रिंग द नियर अ कैंडल फ्लेम. उसको कैंडल फ्लेम के बिल्कुल पास में लेके गए. इट बर्न विद द ब्रिलियंट व्हाइट. व्हाइट कलर में बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. व्हेन इट कंप्लीटली बर्न, जो वो मैग्नीशियम रिबन जो है कंप्लीटली बर्न हो जाता है, तो इट लीव बिहाइंड अ पाउडरी एश. तो वो किसमें? पाउडरी एश में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे पेपर को हम बर्न करते हैं तो पेपर भी एश में कन्वर्ट हो जाता है, सेम वैसे ही जो मैग्नीशियम रिबन है अगर उसको हम कैंडल के ऊपर रखेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पाउडरी एश में. डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? क्या जो वो एश हमारे को मिली वो मैग्नीशियम रिबन के जैसे दिखाई देती है क्या? रिबन तो एक वायर लाइक स्ट्रक्चर था, एश बिल्कुल पाउडरी फॉर्म है, तो टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया. द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग इक्वेशन. ये जो चेंज है वो फॉलोइंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग. आपको पता है कोई भी चीज बर्न होती है तो इट यूजेस ऑक्सीजन. कोई भी चीज बर्न होगी तो इट यूजेस ऑक्सीजन. अपन ने लास्ट ईयर कैंडल वाला प्रैक्टिकल किया था ना, जितनी देर ग्लास के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है उतनी देर कैंडल बर्न होती है, फिर वो क्या हो जाती है? एक्सटेंडाइज हो जाती है, ब्लो आउट हो जाती है ना. तो मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो ऑक्सीजन को यूज करता है, और जो पाउडरी फॉर्म प्रिपेयर होता है वो क्या है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इनटू अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम का जो रिबन है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? Mg. ठीक है, और जो पाउडरी फॉर्म में हमारे पास में जो मैग्नीशियम रिबन की जो एश मिली है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. बोथ आर द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? डिफरेंट थिंग. वही मैग्नीशियम को हमने बर्न किया, वी गेट अ न्यू सब्सटेंस. व्हाट इज दिस? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो जो भी जो चेंज है जिसमें हमें न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होगा तो दैट मींस इट इज अ केमिकल चेंज. न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होते ही हम क्या देंगे? इट इज अ केमिकल चेंज. और आपका इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, मैग्नीशियम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? Mg. और जो एश है उसका केमिकल या इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO. ठीक है, तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग. दैट्स व्हाई वी सेड हियर इट इज अ केमिकल चेंज. और मैग्नीशियम ऑक्साइड को
कैन बी टर्न इनटू अ मैग्नीशियम रिबन, उस एश से आप वापस मैग्नीशियम रिबन या वो वायर बना सकते हो क्या? नो, so that's why it is a chemical change. ओके, हमारे 3 पॉइंट है केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई करने के. फर्स्ट थिंग इज इट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, वापस से हम उसको गेट नहीं कर सकते. नो न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन, सॉरी, न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन. थर्ड चीज, केमिकल स्ट्रक्चर यानी इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ओके, तो ये तीनों चीजें इसमें हो रही हैं. दैट्स व्हाई वी सेड हियर इट इज अ केमिकल चेंज. Okay, the equation here are different from those in mathematics. In equation of the kind, आपके mathematics में भी equations होती हैं, लेकिन ये उन equations से थोड़ी slightly different है क्योंकि ये science में आ रही है ना. मैथ्स में तो x y z वो वाली equations होती हैं, तो आप don't be confused here. No attempt should be made of balance equations at this stage. कलेक्ट द ऐश. अब जो आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ना आपने, उससे जो ऐश आपको मिली है आप उसको कलेक्ट कीजिए एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. उसको थोड़े से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर मिक्स कर दीजिए. स्टिर द मिक्स इन एक्वस वे. जैसे आप नमक को पानी के अंदर मिक्स करते हैं, सेम वैसे ही आपको इस ऐश को वाटर के अंदर मिक्स कर देना है. तो वो हमारा सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है. तो इसको हमने बोल दिया कि ये इसका एक्वस सॉल्यूशन हो गया. एक्वस वर्ड हम किसके लिए लेते हैं? जब भी हम किसी भी चीज को वाटर में मिक्स करते हैं तो हम एक्वस वर्ड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. एक्वस सॉल्यूशन. ओके, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. ब्लू और रेड लिटमस पेपर्स आर द इंडिकेटर्स. आपने पढ़ा ना एसिड बेस चैप्टर में. लिटमस पेपर क्या है? एज अ इंडिकेटर है which denote what is a which substance is a acid and which substance is basic in nature. Okay, so where we use a litmus paper. The litmus paper are the two type, red litmus paper and blue litmus paper. तो हम दोनों लिटमस पेपर से इस एक्वस सॉल्यूशन को, जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस test, how do you classify the aqueous solution acidic or basic? On dissolving the ash in water, it form a new substance. अब जैसे ही हमने ash को water में mix किया तो एक new substance बना. The change can be written in the following equation. अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड था हमारे पास में, उसको हमने किस में मिक्स किया? वाटर में. तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O. पता है आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO, वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया? H2O. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इट क्रिएट अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. फॉर्मूला इज MgOH2. ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो इसको. मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया? H2O. दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? MgOH2. ठीक है, अब जब हम इस MgOH2 को इसमें लिटमस पेपर से चेक करेंगे, हमें याद तो है ना कि रेड लिटमस जब ब्लू में चेंज होता है, दैट मींस जो भी सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक इन नेचर. और व्हेन ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू अ रेड लिटमस पेपर, देन सॉल्यूशन इज एसिडिक. और जब हम इस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को चेक करते हैं तो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू अ ब्लू इन कलर. रेड लिटमस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू इन कलर में. मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है कैसे नेचर का हो गया बेटा? बेसिक इन नेचर. ओके, वापस बोल रही हूँ, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड जो सॉल्यूशन वाटर में मिक्स करने के बाद मिला, हमने उसमें रेड लिटमस पेपर को डिप किया, देन रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू अ ब्लू इन कलर. दैट मींस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है. ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज न्यू सब्सटेंस. अब बताइए, हमने जब रिएक्शन स्टार्ट की थी तो कौन सी चीज से स्टार्ट की थी? मैग्नीशियम रिबन से, मींस Mg से. ओके, Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्लस वाटर. ठीक है, तो ये बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस. एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था और मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो दो चीजें हमें इस पूरी रिएक्शन में, टू न्यू सब्सटेंसेस इज देयर. तो दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज. ये क्या है? केमिकल चेंज है. ओके, तो हमें न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है. ठीक है, और इरिवर्सिबल भी है. तो दैट्स व्हाई वी सेड इट इज अ केमिकल चेंज. To be demonstrated by the teacher, activity 6.7. Dissolve about a teaspoonful of a copper sulfate. Wait a second.